नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ राज्यसभा की बात करते हैं क्योंकि विंटर सेशन का आज से आगाज हुआ और राज्यसभा में कई सारी तब्दीलियां नजर आई। ये सेशन सिर्फ 15 दिन का है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में आज की कार्रवाई में आज जम्मू कश्मीर के एमपीज ने हलफ लिया और यही वजह है ये काफी ज्यादा अहम है। इस मौके पर उन्होंने शमी ओबराय, सज्जाद किचलू और चौधरी रमजान ने हलफ लिया था। कार्रवाई के दौरान नए अराकीन को मुबारकबाद पेश की गई। उम्मीद जाहिर की कि सभी अराकीन को मुबारकबादी का भी बराबर मौका मिले और अपनी बातचीत रखने का भी। Thank you. I'll do this in German. Thank you. Nothing. Thank you. No. Thanks. ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे। सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. So the first Vice President and Chairman of Rajya Sabha, during his acceptance speech on 16th May 1952, I belong to no party. Why I am saying? Because many people claimed that you belong to their party. So I belong to no party, and that means I belong to every party in this house. Yes. Hence, sir, kindly be assured of our cooperation with you in the conduct of the proceedings of the House. Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। Sir,
we wish you good health. We wish you happiness. So on the health, to you and your family, good health, and I really mean it, because you moved from Coimbatore to a place here where the air can be a problem. So good health, sir, please. The second one, sir, is to keep federalism healthy. Sir, you are the custodian of the states, the Council of States. And I'm absolutely sure that you will help us raise our voices in this Council of States. और पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आगाज हुआ, लेकिन इस बार विंटर सेशन सिर्फ 15 दिनों का रखा गया है और उसको लेकर के टीएमसी रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्राय ने तशवीश का इजहार किया है और कहा कि जब पार्लियामेंट सेशन का आगाज हुआ तब इसकी मुद्दत 37 दिनों की थी, लेकिन लगातार इसकी मुद्दत घट रही है। आखिर क्यों? सरकार और लीडरान को इस पर गौर करना होगा। Let me give you just 3 or 4 readings to judge how the parameters are in the Rajya Sabha, sir. 1952, when we started, 52 days was a session. Then in the 60s and 70s, each session came down to about 30 days. Since 2014 to 2019, so the number came down, and now it's below 20 days. This session is 15 days, sir. We urge you. This reading has to improve, sir. I have a reading on discussions on various issues allowed by the chair. I have the reading, sir, from 2009 to 16. 110 discussions were allowed for discussion here, accepted and then discussed, 110. Sir, in the last 8 years, from 110 in Rajya Sabha, it's down to 36 discussions, sir. This is a disturbing number. And I can give you more parameters, like scrutiny of bills. At one time was 8 bills would get scrutinized by a select committee or a standing committee. Now if you look at the reading, it is not 8 or 6 or 5, it's 1.3. 1 bill gets scrutinized out of 10 bills, sir. और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में सभी जिला सदर की तैनाती के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात की तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। एक बड़ा तंजीमी ढांचा बनने जा रहा है जिसका मकसद है पार्टी के अंदरूनी जमहूरियत को मजबूत करना। इस सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कौमी सतह के ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। और अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, जहां पे आज अपनी पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी के अंदर एक अहम शख्सियत को शामिल करने का ऐलान किया गया, जो पार्टी को और उनकी बुनियादी सतह पे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पे नौजवानों के बीच में मजबूत आवाज के तौर पे उभर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कई अहम शख्सियात ने आम आदमी पार्टी में शिरकत की, जिनमें कई अहम नाम शामिल हैं। इनमें मुदस्सिर जरगर डोडा के मशहूर एडवोकेट हैं, जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, अब ऑफिशियली तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इनमें से इस फैसले की वजह से आम आदमी पार्टी के एजेंडे के लिए एक मजबूत आवाज बनने का एक सुनहरा मौका है। आम आदमी पार्टी में किश्तवाड़ के सरगर्म नौजवान आकिब शाह भी शामिल हुए और इससे आम आदमी पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा साबिक सहाफ़ी राजा शकील ने भी हाल ही में पत्रकारिता छोड़ करके पब्लिक सेवा के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो नौजवान कंट्रीब्यूट करते आए हैं हमारे साथ, मुदस्सिर फिरदौस भाई हैं, एडवोकेट मुदस्सिर फिरदौस। मैं इनको सुनता रहता था और मैं देखता रहता था कि ये वक्तन फवक्तन डोडा के लोगों की आवाज उठाते हुए नजर आते थे और मैं चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसे शख्स को जो है वो हमारे साथ होना चाहिए था। और फिर मैं ये सोचता था कि शायद हम इस काबिल नहीं है या इस तरह का कुछ है कि मुदस्सिर भाई जो है वो थोड़ा दूरी से अपना काम कर रहे हैं। फिर जब मुलाकात हुई तो लगा ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं, हक परस्त हैं, सच के लिए लड़ने वाले हैं, अवाम के लिए लड़ने वाले हैं। मुदस्सिर भाई से बात हुई और मुदस्सिर भाई के साथ मिलकर फैसला हुआ कि साथ मिलकर लड़ेंगे। और फख्र की बात है हमारे लिए भी कि इस तरह के जवान जो हैं हमारी जमात की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजा शकील भाई हैं। कई साल इन्होंने अपनी जिंदगी के इन पहाड़ों में
इन गरीब गुरबाल लोगों को दिए। कई साल एक जर्नलिस्ट के तौर पर हर मुमकिन कोशिश की कि लोगों के मामलात हल हो, लोगों की मुश्किलात का इजाला हो। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख आप देख रहे हैं और मैं हूं वसीम कुत्तू। इस वक्त हम ठीक डोडा के डा बंगलो के अंदर मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी का दामन 3 लोगों ने आज फिर से थमाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एडवोकेट मुदस्सिर जो मेरे बिल्कुल साथ में हैं, उनके साथ साथ जो है राजा शकील हैं, जो मीडिया के साथ भी काफी टाइम तक उन्होंने काम किया। उसके बाद आज उनने इस पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा और साथ में किश्तवाड़ के एक भाई हमारे हैं जो यहाँ पे आज खुद मौजूद हैं। एडवोकेट मुदस्सिर से पहले हम बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और पहले तो मुबारकबादी आपको हो, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा पूरे शहर के अंदर आप घूमते हैं, शहर के मुद्दे आप उठाते हैं, चाहे हॉस्पिटल को लेके बात करें या ओवरऑल जो शहर के अंदर जो भी दिक्कतें लोगों को आती हैं। किस तरह से आज आपने ज्वाइन किया और क्या सोच के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया आपने? देखिए, मुझे असल में कुछ बातें हैं जो बहुत पिंच किया करती थी। मैं अक्सर लोकल जो है डोडा टाउन की और पेरिफेरीज की बात करता रहता हूँ। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती थी कि कोई भी मेरा साथ नहीं देता था। इंस्टेड ऑफ कि मुझे एनकरेज किया जाए, इंस्टेड ऑफ कि मुझे बैक किया जाए, उल्टा ये कहते थे तुझ पे PSA लग जाएगा, तुझे अंदर कर देंगे। देखिए, अगर इस वक्त महराज मलिक पे PSA लगा है, अगर वो इस वक्त अंदर है, कोई बदमाशी करके अंदर नहीं गया, कोई बुरे काम करके अंदर नहीं गया, लोगों के लिए गया है, लोगों के हक में लड़ता था, लोगों के हक के लिए लड़ता था, लोगों के लिए लड़ता था, लोगों के लिए अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ उसने जो है हथेली पे रख दिया। और इस वक्त अगर वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे है, वो भी लोगों के लिए ही है। तो मुझे ये बोलना कि PSA लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, अच्छा काम करने के लिए लगता है PSA तो लग जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिसमें PDP है, कांग्रेस है, भाजपा है या उनके अलावा भी कोई सारी पार्टीज हैं। उनको क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया? क्योंकि मौका था आपके पास। आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? देखिए, आम आदमी पार्टी को चुनने का बेसिक रीज़न यही है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग महराज मलिक जो कि सतून ही है इस वक्त आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के, वो बहुत वोकल हैं, वो बोलते हैं, हर मुद्दे के बारे में बोलते हैं। हमें अंदर से ये एक गुबार था कि हम अगर बात करते भी थे तो हमारी सपोर्ट में ही कोई नहीं निकलता था। और अगर हम अपने सीनियर्स से ये बात करते थे अक्सर कि आप मुद्दों के बारे में बात क्यों नहीं करते, आप जो लोकल इश्यूज हैं, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने पॉट होल्स के बारे में बात की डोडा रोड। आज 3 दिन में हमने देखा कि वो पॉट होल्स फिल हो रहे हैं। तो जिनके ऊपर हमने ये जिम्मेवारी दी, जिनको हमने वोट करके, इलेक्ट करके, और हमेशा जब से सिंस माय बर्थ टिल आई एम 42 राइट नाउ, अभी तक जिनके साथ हम जुड़े रहे, हमें उनसे ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गिला शिकवा है। अगर बात खालिद साहब की आती है, आई लव हिज पर्सनैलिटी, आई लव हिम एज अ ह्यूमन। मुझे उनकी सच्चाई से प्यार है, वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिकली हो सकता है, लेकिन एज अ ह्यूमन मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी भी खालिद साहब से, NC से नहीं है। मैं NC से ही मुंसलिक था अभी तक। उनके साथ पॉलिटिकली मुझे कहीं ना कहीं लगता है, शायद उनके वर्कर्स की, हम तो चले एक्टिव थे नहीं उधर उतना NC में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उनके वर्कर्स की कुछ तो मिसहैपनिंग्स ऐसी रही हैं जिनकी वजह से लोगों के बीच में इमेज एक खराब हो गई थी एक NC की। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा? नहीं, मुझे कोई परेशानी का पर्सनली सामना नहीं करना पड़ा। बस ये लगता है कि आने वाले वक्त में डोडा में, ओवरऑल की मैं बात नहीं करूँगा, डोडा में मुझे NC इररेलेवेंट होती हुई दिखी। और महराज मलिक की जो है रेलेवेंस वो प्रूव कर रहा है। तो क्या लगता है आपने जिम्मेवारी जो पकड़ी हुई है, पार्टी को बड़े लेवल पे ज्वाइन किया और आपने जो अपनी स्पीच में भी कहा कि जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, क्या होगा आने वाले टाइम में? शहर के लिए किस तरह की तरक्की होगी, किस तरह की आवाज़ें आपकी होंगी? देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्टी तो मैंने ज्वाइन की, बट अदर देन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्टी, जस्ट बीइंग अ सिटीजन ऑफ डोडा, मैं अक्सर डोडा की बात करता हूँ, ना ही बात करता हूँ, ना सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस हद तक मेरे से हो पाए मैं कुछ अच्छे काम करूँ। मैंने रिसेंटली शायद आपने भी कवर किया था, मैंने रिसेंटली ये पुलडोडा रोड के बारे में बात की थी कि किस तरह से वहाँ पर माइनिंग चल रही थी, इलीगल माइनिंग, और
इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे हैं यहाँ पे, बिजनेस की जो खस्ता हालत है इस वक्त डोडा में, जो लोकल वेंडर है वो मरता जा रहा है, उसका दम घुट रहा है। बड़ी बड़ी फिशेस, बड़ी बड़ी शार्क्स डोडा में आ रही हैं, वो एंटर कर रही हैं। अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए, अच्छे शोरूम्स आने चाहिए, लेकिन लोकल वेंडर्स के लिए क्या बेनिफिट है, क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या लोकली हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक उनके बेनिफिट के लिए कोई बात की, क्या उनके हक के लिए कोई आवाज़ उठाई, या कुछ ऐसा कोई एक ऐसी स्टेप ली जिससे वो लोकल वेंडर्स भी सरवाइव करें? मैं आपके पास फिर आऊँगा, मेरे साथ राजा शकील है। थोड़ा सा बताइएगा, काफ़ी टाइम आपने जर्नलिज्म किया, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा? देखिए वसीम भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने जब भी देखा, जब भी आप किसी कोई मुद्दा देखते हो उस पर ज़रूर पूछने की कोशिश करते हो, उस पर बोलने की कोशिश करते हो। तो आपने जैसे कहा कि मेरा भी ये इसी जर्नलिज्म से लगभग 7-8 साल का सफ़र रहा, और उसके बाद आपने देखा कि जर्नलिज्म जब महराज दिन मलिक इस खित्ते चनाब के अंदर ग्राउंड में आए, क्योंकि उससे पहले सियासत जो थी वो एक अलग किस्म की सियासत थी। वहाँ सियासतदान वर्करों पे जो है वर्करों पर जो है राज करते थे, लेकिन यहाँ वर्करों ने किसी सियासतदान को बनाया, खुद उठ के ज़मीन से उठ के अपना माल लगाया, अपना पैसा लगाया, अपने वक्त जो है दिया और महराज मलिक के साथ खड़े हुए। और उसके बाद क्या होता है, जब महराज दिन मलिक इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनके वर्कर्स को दबाया जाता है। आप बखूबी देखते हैं कि जिस तरह से उनके वर्कर्स काम करते, उन पर जुल्म किया जाता था, जाने लगा, उनके काम नहीं किए जाने लगे। तो जब हम उस चीज़ की आवाज़ उठाने लगे तो हम पे भी जो है सवालात आने लगे, यानी कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल दबाने की कोशिश की, वो आप भी जानते हैं। और फिर हमारे मीडिया जर्नलिज्म जो होता है उसके अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, लिमिटेशंस होती है, जो वहाँ पर हम बता नहीं पाते, जो वहाँ पर हम कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमने सोचा कि महराज दीन मलिक जिस तरह से खुल के बोलते हैं, गरीब के हक में बोलते हैं, जालिम के खिलाफ बोलते हैं और बिना किसी डर के बोलते हैं, और उसी मिशन के साथ हमने चाहा कि हम उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि महराज दिन मलिक वो एक ऐसी आवाज़ थी जो गरीब के हक के लिए बोलती थी, मजलूम के हक के लिए बोलती थी, जालिम के खिलाफ बोलती थी, और उसी आवाज़ को दबाने के लिए पूरा सिस्टम चला गया। और उसके लिए आपने भी देखा कि जब उसकी आवाज़ को दबाया गया, उसको जेल किया गया, और उसके बाद यहाँ की सहाफत, मैं जिला डोडा की बात करूं तो उनको भी रोका गया कि आप उस पर सवाल ना पूछिए। और आपने भी देखा होगा कि किसी भी सहाफी ने यह नहीं पूछा कि भाईजान, अगर एक एमएलए को, एक रिप्रेजेंटेटिव को आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अंदर कर रहे हो तो क्या गलती थी उसकी, क्या वजह थी उसकी। जिन्होंने उसको लगाया उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया और ना पूछने की किसी ने हिम्मत की। तो हम, आपको यूथ जुड़ रही है इस पार्टी के साथ, कितना मजबूत आस्ता आस्ता पार्टी होती जा रही है? आप बखूबी जानते हैं कि कतरे कतरे से जो है तालाब बनता है। तो इस वक्त महराज दिन मलिक जेल के अंदर है और हम उसकी सोच के साथ जुड़े हुए हैं। जिस मैदान में वो चल रहे हैं उस मैदान में नौजवानों को जोड़ रहे हैं। आपने आज देखा कि एडवोकेट साहब जुड़ गए, यहाँ से सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत बेहतरीन काम कर, ये जुड़ गए। और हमने भी चाहा कि उस सोच के साथ जुड़ना चाहिए, जो सोच बदलाव की सोच है, जो सोच इनकलाब की सोच है। आखिरी जो हमारे साथ शख्स हैं, आकिब शाह, किश्तवाड़ से आप हैं, क्या सोच के आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? और मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ कि महराज मलिक एक तरफ से डिटेन किए गए हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, वो कठुआ जेल के अंदर हैं, दूसरी तरफ से लोग उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। So you asked the two questions. I will bifurcate both of them. First is that why you are joining the political party, the Aam Aadmi Party. The reason is I don't really believe in the party system, the political parties, because the reason is we have seen the depressions, we have seen the level of anarchy, the level of suppression to the people of Kishtwar, especially those who are living in the outskirts of the Kishtwar. So मैं जहाँ से आता हूँ, एक खुद गरीब फैमिली से आता हूँ, तो मैंने जुल्म देखा है, बड़ी करीबी से जुल्म देखा है। अभी भी जहाँ जहाँ जाता हूँ, मेरा 2 महीने का एक्टिविज्म है, बट जहाँ जहाँ जाता हूँ अभी भी जिनको जो हक मिलने चाहिए थे नहीं मिलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स उनका हक छीन रहे हैं, उनका नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो उनका हक छीन रहे हैं। तो ओवरऑल जो गरीब है बेचारा वो पिसता जा रहा है और अमीर अपने घर बना रहा है। वो गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। यस आई हैव डन द मैथ्स ऑन इट कि गरीब जो है उसका नरेगा से 100 दिन का रोजगार है, उसका मटेरियल दिया जाता है और वही मटेरियल का पैसा कमिश्नर तक जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन है।
तो जैसे राजीव गांधी कहता है कि सिर्फ 10% जो है, जो 100% होता है उसका सिर्फ 10% जो है वो एक आम आदमी के पास पहुंचता है। तो द रीजन टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज पे, लेकिन मेरा जो पब्लिक पीछे से है, जो मेरे मुझ पे बिलीव करते हैं कि ये हमारे लड़ता है, उनका ये है कि महराज मलिक जैसा बंदा चाहिए उनको, जो उनके अंदर ख्याल हैं, जो उनके अंदर जो अभी तक सप्रेशन हुआ है, उनके इनजस्टिस हुआ है, वो एक ही बंदा लड़ता था क्योंकि गरीब घर से उठ के आया था, वही लड़ता था। तो ऐसा बंदा चाहिए। ऐसा आपने क्या देखा महराज मलिक के अंदर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो ऐसा क्या आपने मैं रिसेंट फिनोमेनन बताऊंगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का तैयारी करता था। मैं आई वाज नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड नेवर थॉट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज मैं दिल्ली में ही सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था काफ़ी टाइम से। बट जो लास्ट वाला एपिसोड हुआ इसी डाक बंगले से, डोडा डाक बंगले से ही इशू हुआ कि डिस्पेंसरी किसी घर पे थी 4 साल से, डीसी डोडा ने उसका पेमेंट नहीं किया। उसके अलावा डिस्पेंसरी के अलावा जहाँ एक बंदा, एक इन्फ्लुएंशियल बंदा था, उसके घर पे ICDS सेंटर भी था, और शीप हस्बेंड्री, मोस्ट प्रोबेबली शीप हस्बेंड्री का उसका भी एक ऑफिस वहाँ पे था। अगर ऑलरेडी उसके 2 ऑफिस उसके घर में है, तो तीसरा देने की क्या जरूरत है? अगर देना भी है तो उस गरीब बेचारे का, जिस गरीब का बेचारे का तुम डिस्पेंसरी छीन रहे हो, उसका एटलीस्ट पैसा दे दो, उसका सर्वाइवल ही उस चीज़ पे है। तो महराज मलिक ने यही चीज़ बोला, और इसी चीज़ पे यहाँ के DC डोडा ने फाइनली जो है PSA लगा दिया उन पे, और फाइनली इसे अंदर किया। और अगर इस चीज़ पे PSA लगाया जाता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ गरीब के साथ, गरीब को मटेरियल नहीं दिया जाता है, गरीब को स्किल नहीं दिया जाता है, वो ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिक्स हो, दोनों इन्वॉल्व हैं उसको सप्रेस करने में। तो इन चीज़ों पे अगर हम पे PSA लगता है तो लगा दीजिए, हम इस चीज़ से डरते नहीं है। मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, वो ब्यूरोक्रेट्स या से बात करेंगे आपके साथ, मगर फिलहाल इस वक्त आपको बताना चाहेंगे जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी में आज लगभग 3 लोग गए, जिसमें एडवोकेट मुदस्सिर है, आकिब शाह है, और साथ साथ में राजा शकील जो जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज इस पार्टी को ज्वाइन किया। और जिस तरह से एडवोकेट मुदस्सिर का मानना है कि मैं ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, मगर कई सारी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा और पार्टी को अलविदा कह के आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ज़रूर महराज मलिक PSA के तहत कुठवा जेल के अंदर है, जब तक महराज मलिक गरीबों के साथ, गरीबों को इंसाफ को लेके जिस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब तक वो गरीबों के साथ हैं, और इसी तरह से हम भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में पिछले कुछ महीने पहले हुई लगातार बारिश, पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था, लेकिन कुछ को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। अब मंडल के अफसरान की तरफ से समय समय पर मुख्तलिफ खंड का जायजा लेने और ट्रेनों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के बाद फिर से ट्रेनों की सर्विस बहाल कर दी गई है। इस कड़ी में कुछ ट्रेनों की सर्विस 7वें फेज में फिर से बहाल किया जा रहा है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और उसको देखते हुए पठानकोट उधमपुर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इसके बीच यानी कि उधमपुर को जाने वाली सारी ट्रेनें DMU ट्रेन को आज से शुरू कर दिया गया है, और कुछ दीगर ट्रेनें भी शुरू की जा रही है। लेकिन DMU का उधमपुर के लोगों को काफ़ी वक्त से इंतज़ार भी था। रोज़ इस ट्रेन में सफ़र करने वाले स्टूडेंट, मुलाजमीन और मरीज़ इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा। ट्रेन सर्विस तो बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में एक तरफ से खुशी है, दूसरी तरफ से रेलवे प्रशासन से अपील भी है कि इस ट्रेन को दोनों तरफ से चलाया जाए, ताकि उधमपुर से इसका सुबह का वक्त जो तय किया गया था उस हिसाब से चले, तलबा, मुलाजमीन और दूसरे लोगों को इसका फायदा हो। ये DMU पठानकोट से उधमपुर के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा शुरू की है, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कह देना चाहता हूं कि प्लीज़, जैसे आपने पठानकोट से उधमपुर तक ये सर्विस चलाई है, उसी तरह से अगर इसकी जगह उधमपुर से पठानकोट की तरफ दोबारा भी चलाई जाती तो दोनों तरफ से सर्विस चलती, जिससे हमारे यहाँ के उधमपुर के, जम्मू के लोगों को ये सुविधा मिलती और लोगों को आने जाने में भी कोई मुश्किल ना होती। जैसे DMU उधमपुर तो आ जाएगी, लेकिन वापस किसने जाना होगा उसके लिए उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि DMU जो है वो पठानकोट से उधमपुर और उधमपुर से पठानकोट 2 ट्रेनें लगाई जाए, ताकि आने जाने में लोगों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है। लंबे समय से जो लोकल उधमपुर के लोग हैं वो सफर कर रहे थे कि DMU ट्रेन जो है वो सस्पेंड थी, और जिसके चलते एक स्टूडेंट्स और खासकर जो पेशेंट्स या फिर डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। एक काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट ये जो है दोनों तरफा होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि पठानकोट से उधमपुर जो है अभी तक जो रिज्यूम की गई है इसकी सर्विसेज, हम चाहते हैं कि
उधमपुर से पठानकोट भी ये सर्विसेज रिज्यूम हो, ताकि जो उधमपुर से सुबह स्टूडेंट हैं या फिर अन्य जो पेशेंट्स हैं जम्मू जाते हैं या फिर पठानकोट जाते हैं, उनके लिए एक सुविधाजनक जो है हो जाएगा। जो DMU सर्विस शुरू की गई है सराहनीय कदम है एक, मगर इसमें देखा जाए तो लोकल जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक इसमें मतलब कि उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोकल आने जाने वाले जो पैसेंजर हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। मगर देखा जाए तो इसको एक तरफा चलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो इसको दोहरा चलाना चाहिए, डबल चलाना चाहिए, जो इधर से उधर से इधर आए। मगर इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि टाइमिंग का इशू है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं सुबह मॉर्निंग में उन्होंने इधर से जम्मू जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट जो जाते हैं आगे पीछे जो पढ़ने के लिए, उनके लिए एक टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंटों के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको भी फ़ायदा हो और इस ट्रेन का उनको बेनिफिट मिले, जो लोकल जहाँ से सफ़र करते हैं। तो उनसे यही होना चाहिए कि इनको टाइमिंग इसकी सही करनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।